Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma, and I welcome you in the class of English literature. So, dear students, first of all, I would like to tell you the course. So, you have two books in your syllabus. First is Hornbill, and second is Snapshot. Today I will send you a PDF where you will get how many questions of English literature will come in your exam. And second thing that you will know from that PDF is that which chapters are deleted from your syllabus in this 2020 to 21 session. Okay, so first of all, I'm going to start your first book, Hornbill, uh, that is in your syllabus of English literature. So we shall study the first chapter of this book, that is The Portrait of a Lady, and that is written by Mr. Khushwant Singh, who is a very renowned writer. So let's start that chapter. I will send you the PDF of that chapter also. Okay, so let's start the chapter. Here we have the chapter The Portrait of a Lady. I hope that this is pretty much clear on your mobile screen, but if it is not, so you may check the text from the given PDF that I will give you in the WhatsApp group. So let's start the chapter. First chapter is The Portrait of a Lady, written by Mr. Khushwant Singh, and it is expected uh, to you that first of all you will notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. Whenever these expressions will come during the text, you will infer their meaning, so it is required first. So let's start the text. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. So here writer says, Khushwant Singh says, uh, Khushwant Singh is writing about his grandmother in this chapter, how she was. So, describing his grandmother, he says, My grandmother, मेरी दादी माँ, like everybody's grandmother, हर एक की दादी माँ की तरह, was an old woman. वो एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो जितने 20 वर्षों से मैं उन्हें जानता था, उतने 20 वर्षों से हैड बीन ओल्ड, बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ, चेहरे पर जो रिंकल्स पड़ जाती हैं, झुर्रियों वाला चेहरा जैसा बूढ़े लोगों का होता है, वैसे ही रिंकल्ड चेहरे वाली रही थी 20 सालों से, 20 वर्षों से, जब से मैं उन्हें जानता था. मतलब indirectly writer is telling that he is 20-year old right now when he is writing this chapter. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग, वो कहता है, लोग ऐसा कहा करते थे कि वो कभी, वंस, कभी, बीन यंग, वो कभी जवान रही थी, एंड प्रीटी, और सुंदर भी रही थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनका कोई पति भी था. लेकिन आज जैसा खुशवंत सिंह अपनी दादी को देखते हैं, सो शी इज़ नॉट यंग एंड शी इज़ नॉट प्रीटी इन द सेंस ऑफ यंग. वो सुंदर नहीं है जैसा कि अक्सर जवान लोग होते हैं, बट हाँ, बूढ़ी औरतें भी, मतलब उनकी भी अपनी एक सुंदरता, एक चार्म है कि वो दादी के रूप में उनको सुंदर लगती हैं. लेकिन जैसे एक किशोर नवयुवती सुंदर होती है, वैसी वो कभी सुंदर रही थी, ऐसा लोग कहा करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता था. ये इस बात पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above द मेंटल पीस इन द ड्राइंग. मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, मेरे दादाजी की तस्वीर, वो ड्राइंग रूम का जो मेंटल पीस था, मेंटल पीस कहते हैं जो ताक होती है, ताक मतलब एक शेल्फ टाइप होती है, शेल्फ. ज़्यादातर ये मेंटल पीस जो होता है, ये जो फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ निकली हुई होती है, तो उस शेल्फ को मेंटल पीस बोला गया. बाकी नॉर्मल शेल्फ को भी हम मेंटल पीस कह सकते हैं. तो मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, वो मतलब टंगा हुआ था ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन, और मेरे दादाजी जो हैं एक बड़ी सी टर्बन
पहना करते थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। जैसे पुराने समय में लाइक यू हैव वॉच्ड पंजाबीज, जो पंजाबी फैमिली के जो बुजुर्ग होते हैं वो आज भी कुर्ते पजामे पहनते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लूज फिटिंग क्लोथ्स, उनको ढीले वस्त्र कहा गया है। सो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द चेस्ट, सॉरी बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब दादाजी की जो लॉन्ग लंबी, जो उनकी पोर्ट्रेट में भी दिख रही है, तस्वीर में भी दिख रही है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनकी चेस्ट का बेस्ट पार्ट मतलब ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी हिस्सा कवर किए हुए थी, कवर ढके रखती थी, क्योंकि काफ़ी लंबी दाढ़ी पुराने समय में लोग जो मेनली पंजाबी जो होते थे वो काफ़ी लंबी दाढ़ी रखा करते थे। सो इसलिए वो लिखते हैं हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी चेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा कवर करके रखती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और लगभग वो कितने वर्ष के लगते थे, कम से कम 100 ईयर ओल्ड वो दिखाई पड़ते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और वो भी दादाजी भी ऐसे मतलब इस तरह के इंसान नहीं लगते थे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन, द शॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब उस तरह के इंसान लुक नहीं होते थे, नहीं दिखते थे जिसकी कभी कोई पत्नी या बच्चे रहे हो, मतलब वो तो ऐसे लगते थे कि पत्नी या बच्चे तो नहीं, बस हाँ पोते पड़पोते ही रहे होंगे, तो दादाजी रहे होंगे हमेशा से। सो उनकी मतलब उनका चेहरा देख के ऐसा लगता था, उनका पोर्ट्रेट देखकर। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और देखिए राइटर ने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है। ही सेज, राइटर कहता है, खुशवंत सिंह अपने दादाजी के बारे में कहता है, ही लुक्ड एज, वो तो ऐसे दिखते थे जैसे कि इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे कि उनके बहुत सारे बस पोते नाती पोते ही हों, बस दादाजी ही होंगे वो सदा सदा के लिए, मतलब बचपन से ही दादाजी, मतलब इट्स जस्ट अ फन, इट्स जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, के उसको ऐसा लगता था कि ये तो बस दादाजी के लिए जन्म लिया है इन्होंने, ऐसे हैं वो, कभी ये जवान रहे होंगे ऐसा नहीं लगता। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, ठीक जैसे मेरी दादी जी कभी जवान और खूबसूरत रही थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब जहाँ तक इस विचार की बात है कि मेरी दादी कभी जवान और खूबसूरत रही होंगी, तो ये जो विचार था, ये विचार पूरी तरह से एकदम रिवोल्टिंग था, मतलब एकदम से विश्वास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, उन खेलों के बारे में बताती थी जिन खेलों को वो खेला करती थी। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा जिनके घरों पे दादी हैं दादाजी हैं, तो वो अक्सर अपनी पुरानी बातें बताते रहते हैं कि हम ये खेलते थे, हम यहाँ घूमने जाते थे, हमने ऐसे पढ़ाई की थी, तो वो अक्सर बताते रहते हैं। तो वो भी ओफन मतलब अक्सर टोल्डस हमें बताया करती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो कि वो एक बच्चे की तरह खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये जो बात थी ये मतलब बहुत ज़्यादा अनडिग्निफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी बात, मतलब वो तो बहुत बड़ी हैं दादी, इतनी उम्र है इनकी, क्या ये भी कभी खेलती होंगी ऐसे हॉप्स कोच, लंगड़ी टांग, इस तरह के खेल खेलती होंगी ये कभी, मतलब ये बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, सुन के बिल्कुल भद्दा लगता था, विश्वास नहीं होता था। सो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बिल्कुल भद्दा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और बिल्कुल अपना मतलब जिसमें कोई सम्मान प्रकट ना हो रहा हो, एक छोटी बात लगती थी ऑन हर पार्ट, जब उनके तरफ मतलब उनसे ये बात हम सुनते थे उनके बारे में। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स यूज टू टेल अस, और हम तो बस इनको प्रोफेट्स की फेबल, जो महान संतों की गाथाएं हैं, उनकी तरह इन कहानियों को ट्रीट किया करते थे, इन कहानियों को इस तरह से समझते थे। शी यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ वो हमें अक्सर सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, अब वो अपनी दादी के जो मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, अपनी दादी के शरीर की कदकाठी के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? खुशवंत सिंह। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, कि वो हमेशा से कैसी रही थी? शॉर्ट मतलब नाटी, छोटे कद की, एंड फैट थोड़ी मोटी रही थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी स्लाइटली मतलब थोड़ी सी बेंट, झुकी हुई रही थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका जो चेहरा था उस चेहरे पर क्या बनी थी? क्रिस क्रॉस मतलब आड़ी तिरछी रेखाएं। किसकी रेखाएं? रिंकल्स, झुर्रियों की रेखाएं बनी हुई थी, जो बस यहाँ से वहाँ
पूरे चेहरे पर दौड़ रही थी। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिन झुर्रियों से क्या होता है, लाइन क्रिएट हो जाती हैं, क्रिस क्रॉस लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, जो बस ऐसा लगता है कि कितनी सारी लाइंस हैं, है ना। सो उनका चेहरा दादी का कुछ इस तरह था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। राइटर कह रहा है यहाँ पे कि नहीं, हम इस बात को लेकर पूरी तरह से सर्टेन थे, पूरी तरह से निश्चित थे, पक्की, हमें पक्की बात ये लगती थी कि वो शी हैड ऑलवेज बीन एज, कि वो हमेशा से ही ऐसी रही हैं, एज वी हैड नोन हर, जिस तरह से हम उन्हें जानते हैं, जैसे हमने उन्हें देखा है, कि वो बचपन से ही ऐसी रही होंगी। विश्वास करना मुश्किल था कि वो कभी यंग और प्रेटी रही होंगी। ओल्ड, इतनी ही बूढ़ी रही होंगी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा और कोई बूढ़ा हो नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो 20 वर्षों से उसी स्टेज पर, उसी अवस्था पर, मतलब वैसी की वैसी ही, 20 वर्षों से वो वैसी की वैसी ही मतलब बनी रही थी। मतलब उनका बुढ़ापा जो था ना, घटने का तो सवाल ही नहीं होता, उम्र तो हमेशा बढ़ती है, यू नो दैट। एंड वो कहना चाह रहा है कि वो बढ़ भी नहीं रहा था, अब वो ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी थी कि कोई इससे ज़्यादा बूढ़ा नहीं हो सकता। डैट इज़ वाई खुशवंत सिंह इज़ यूज सो टेरिबली ओल्ड, इसीलिए उन्होंने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया कि वो इतनी टेरिबली ओल्ड थी कि अब इससे ज़्यादा शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इसी एज में 20 ईयर्स के लिए, मतलब 20 वर्षों से इसी उम्र में वो बनी रही। स्टेड मतलब ऐसी ही कि ऐसी रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मतलब वो सुंदर, वो कहता है, देखिए प्रीटी और ब्यूटीफुल में अंतर क्या है। प्रीटी का मतलब है प्यारी, प्यारी मतलब जो यंग और सॉफ्ट स्किन, और मतलब आप कहिए विदाउट रिंकल वाली जो स्किन, फेयर स्किन होती है, वो दैट काइंड ऑफ प्रीटीनेस उनके अंदर नहीं हो सकती। लेकिन खुशवंत सिंह ये बात मानता है कि उसकी दादी शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो सदा सुंदर तो थी। अब देखिए सुंदरता, तो सुंदर तो जवान बच्चा भी हो सकता है, सुंदर तो छोटा मतलब बच्चा भी हो सकता है, सुंदर तो बूढ़ा व्यक्ति भी सुंदर लगता है, क्योंकि वो भी उसकी अपनी एक बुढ़ापे की भी एक अपनी सुंदरता होती है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और ये सब चीज़ें। सो वो कहता है कि वो प्रीटी तो नहीं थी, प्रीटी तो नहीं थी, क्योंकि वो तो प्रीटीनेस तो जवान यंग स्टेज में होती है, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी सदा सदा से। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। और वो क्या करती थी, वो घर में जो होबल करती थी, घूमती थी, वो स्पोर्टलेस वाइट मतलब ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनती थी, सफ़ेद कपड़े पहन के रखती थी घर में, जो बिल्कुल स्पोर्टलेस, जिनमें कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसे स्पोर्ट ना हो कुछ भी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और जैसे दादी चलती हैं एक हाथ अपनी कमर पर रेस्ट करते हुए टिका कर, वैसे ही वो विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर एक हाथ टिकाए हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कूल्हे को बैलेंस करने के लिए, एंड दी अदर टेलिंग दी बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ वो कहाँ रखती थी, मतलब दूसरे हाथ से अपनी रोजरी, कहते हैं जप माला को, जिस पर आप माला जपते हैं ना बूढ़े लोग, तो वो टेलिंग द बीड्स, टेलिंग बीड्स का मतलब है जपना। सो वो अपनी जपमाला के मतलब मनकों को जपती रहती थी, दूसरे हाथ में अपने मनकों की माला को जपा करती थी, और होबल्ड किया करती थी, फिर लंगड़ाते हुए थोड़ा सा घूमती थी। होबल्ड मतलब लंगड़ाते हुए थोड़ा घूमना। सो हर सिल्वर लॉक्स, और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, सिल्वर कहा जाता है चांदी को, चांदी में होती है सफ़ेद, तो जो उनका सफ़ेद जूड़ा था, जो उनकी बाल थे, लटें थी उनकी, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, और उनका जो चांदी जैसी जो उनकी साफ श्वेत सफ़ेद वो थी, लटें थी, वो खुली रहती थी, और उनका जो लटें खुली हुई रहती थी वो उनके पीले और
पकर्ड फेस का भी मतलब क्या होता है, झुर्रियोंदार चेहरा, जो झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है उस पर बिखरी रहती थी, ठीक है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो लगातार, इनऑडिबल प्रेयर मतलब ऐसी प्रार्थना जिस मतलब ऐसे मंत्र जिसको सुना ना जा सके, मतलब आपने देखा होगा, यू हैव मैनी टाइम्स वॉच्ड इट दैट जो बहुत सारे लाइक लोग होते हैं वो जब मंत्र जपते हैं तो वो आवाज़ नहीं करते, मन मन में जपते हैं, तो वो भी ऐसे ही इनऑडिबल प्रेयर अपनी प्रार्थनाएं पढ़ा करती थी। पंजाबी में जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो मतलब प्रार्थनाएं हुआ करती होंगी वो पढ़ती रहती थी, उसमें में उनके जो होठ थे वो कॉन्स्टेंटली लगातार मूव होते रहते थे, मतलब हिलते रहते थे, पता चलता रहता था हाँ ये मंत्र जाप कर रही हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे पहाड़ी पर कोई सर्दियों में जो लैंडस्केप बन जाता है, आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल सारी पहाड़ी सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे उस पहाड़ी की तरह ही दिखती थी, उसी पहाड़ी के लैंडस्केप प्राकृतिक दृश्य की तरह सुंदर दिखाई पड़ती थी, क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, उनका जूड़ा जो था, लॉक्स जो थे, उनके बाल लटे जो थी वो भी सफ़ेद थे, चेहरा भी उनका पेल बताया गया है। पेल का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स पीला होता है, बट जब हम किसी ह्यूमन फेस की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पीला नहीं सफ़ेद से हम उसका आइडिया लगाते हैं कि वो जैसे जिसमें ब्लड लेस जो हो जाता है फेस, जिसमें बहुत ज़्यादा खून नहीं रहता, तो सफ़ेद और रंग भी किसी का गोरा हो तो वो फिर सफ़ेद चेहरा पीला सा लगने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे पेल इस्तेमाल किया गया। तो वो बिल्कुल सारी सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद लटें, रंग गोरा, तो वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे माउंटेन्स पर बर्फ़ की चादर सर्दियों में बिछी रहती है, उसका एक जो लैंडस्केप क्रिएट हो जाता है, जो प्राकृतिक दृश्य बन जाता है, उस दृश्य की तरह सुंदर दिखाई पड़ती थी। ओके, सो आगे वो कहता है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे शुद्ध श्वेत पवित्रता का फैलाव, शुद्ध श्वेत प्योर वाइट, सेरेनिटी पवित्रता, एक्सपेंस फैलाव, तो वो बिल्कुल शी वॉज लाइक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो एक शुद्ध श्वेत पवित्रता का फैलाव। पवित्रता का मतलब यहाँ पे क्या है, पवित्रता देखिए क्योंकि इसको कंपेयर किया गया है जो माउंटेन पर जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल से, स्नोफॉल को पवित्र किस लिए बताया जाता है, क्योंकि देखिए वैसे तो ज़मीन पर लोग अपने कदम रखते हैं, ज़मीन पर लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब स्नोफॉल हो रहा होता है तो वो स्नो उस ज़मीन पर कोई चला नहीं होता, बर्फ़ पर बहुत मतलब कम लोग सैलानी ऐसे होते हैं जो कभी चले जाते हैं, बट रेयरली वो उस बर्फ़ पर कोई कदम रखता है, तो वो एक तरह से अनछुई बिल्कुल पवित्र रहती है वो जगह फिर, तो बिल्कुल वैसे ही वो प्योर वाइट से, और सफ़ेद वस्त्र तो और सफ़ेद रंग तो वैसे भी पवित्रता का सूचक माना गया है, सो इसीलिए उसको प्योर वाइट सेरेनिटी कहा गया है, उसके एक फैलाव की तरह, उसके एक्सपेंस की तरह वो दिखाई पड़ती थी, ब्रेदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और एक शांति और संतुष्टि से भरी भरी हुई और सांस लेती हुई, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, ब्रेदिंग पीस मतलब जो शांति के साथ आराम से सांस लेती हूँ। आज होता क्या है, जब हम यंग स्टेज में होते हैं तो हमें एकदम से इतनी एंग्जाइटी और एकदम से इतना एग्रेशन सा रहता है, और हम इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, कोई कोई काम लगा रहता है, तो हमारे मन में मतलब एक तरह से शांति नहीं रहती। लेकिन जब हम खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं अपनी दादी के बारे में बताऊं, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उनका मन बिल्कुल शांत है, तो इसके लिए इन्होंने ब्रेदिंग पीस इस्तेमाल किया है। सो वो कहते हैं शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स की तरह थी, एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी की तरह थी, ब्रेदिंग पीस मतलब शांति से सांस लेते हुए किसी इंसान की भांति थी, एंड कंटेंटमेंट और जिसके मन में संतुष्टि हो, जिसको जो शांत मन वाला हो, इस तरह की उनकी दादी माँ थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो, and I request you please watch this video again and again if you are having any problem to understand this text, but please try to understand this text as it is very important chapter. So thank you for today, I will continue this chapter tomorrow. Thank you, bye bye.